Good morning, student. The topic which I brought is the Satyagraha, and this is a topic from Mahatma Gandhi, and it is from Core 4 of semester 2. As we all know that Mahatma Gandhi, the two main philosophy, truth and non-violence, and the Satyagraha was very important in our Indian political thought. So today we will focus on the Satyagraha. Satyagraha is an important part of his thought, and it is based on the truth and non-violence. Gandhiji wishes to establish Ram Raj, or an ideal society, with the help of this means. It was a non-violence resistance to fight out the British imperialism from India. He says, "I swear by the non-violence because I knew that it alone conduces to the highest goods of the mankind, not merely in the next world, but in this also. I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary, the evil it does is permanent." तो गांधी जी की सत्य और अहिंसा, साध्य और साधना की चेष्टा तथा व्यक्ति की नैतिक पवित्रता में दृढ़ आस्था थी, और अपने इन्हीं विश्वासों के आधार पर उन्होंने बुराइयों के प्रतिरोध के एक नवीन मार्ग का आविष्कार किया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। सत्याग्रह की पद्धति गांधी जी की राजनीति को विशेष और अपूर्ण देन है। स्वयं गांधी जी के शब्दों में उन्होंने अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह शक्तिशाली और वीर मनुष्य का शस्त्र है। एक सत्याग्रही अपनी प्रतिद्वंदी से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है और उसमें ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देता है कि वह बिना अपने को नुकसान पहुंचाए उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो सत्याग्रह तो सत्य की विजय हेतु किए जाने वाली आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम है। तो now the origin of the word Satyagraha. The story of reading the origin of the word Satyagraha is very interesting. From the 1906 to 1914, Gandhiji work field was South Africa, and the European peoples were treating inhuman to the non-white people. Consequently, they were organized against these discriminations in the leadership of the Mahatma Gandhi. They started a peaceful campaign, but Gandhiji was refusing regarding its name. It was an active resistance could not be called it a passive resistance. To solve the problem, he published the paper Indian Opinion that the people who suggested an appropriate name would be rewarded. The definition of the Satyagraha, the literal meaning of the Satyagraha is agra for the truth, means it includes moral pressures for the sake of truth. It is a teaching. It is a technique of the resisting all is evil, unjust, impure by the love, self-suffering, and by appearing to the divine spark in the soul of opponent. Satyagraha has much spiritual power. He does not passively wait for the transformation of the opponent. He boldly takes the course that enlightens and changes the heart of the opponent. Satyagraha is in fact Gandhiji technique contribution. For the Satyagraha body may be preached out, but the soul does not. That's why he is prepared even to die, so that his death may change the heart of the opponent and inspire him to accept the truth. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो गांधी जी ने सत्याग्रह की जितने भी निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रवाची समझा दिया जाता है उतना ही प्रस्तुत नहीं होता। यद्यपि ये दोनों आक्रमण का
सम्मान करने, संघर्षों को दूर करने और सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने की प्रविधियां हैं। जो सत्याग्रह का अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांत की नीति के रूप में नहीं वरन आदर्श के रूप में अपनाया जाता है। सत्याग्रह की गुण जो है वो गांधी जी के अनुसार है कि प्रत्येक व्यक्ति सत्याग्रह के सिद्धांत पर आचरण नहीं कर सकता। सत्याग्रही में कुछ विशेष गुण होने चाहिए जिनके अनुसार सत्याग्रह के लिए यह आवश्यक है कि वह सत्य पर चलने वाला हो, अनुशासन में रहने का अभ्यास हो तथा मानस, वाचा और कर्म अहिंसा में विश्वास रखने वाला हो। सत्याग्रह के विभिन्न रूप भी देखे गए हैं, जैसे कि असहयोग आंदोलन। गांधी जी का विचार था कि किसी भी शासन द्वारा जनता के सहयोग से ही शोषण और अत्याचार किए जा सकते हैं। जनता के सहयोग से ही शोषण और अत्याचार किए जा सकते हैं और ऐसी स्थिति में जनता शासन के साथ सहयोग करने से इनकार कर दे तो शासन के द्वारा कार्य नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा है सविनय अज्ञान आंदोलन। गांधी जी का विचार था कि किसी भी शासन द्वारा जनता के सहयोग से ही शोषण और अत्याचार सत्याग्रह का असहयोग से अधिक प्रभावपूर्ण रूप सविनय अज्ञान है। गांधी जी इसे पूर्ण प्रभावदायक और सैनिक विद्रोह का रक्तहीन विकल्प कहते हैं। और तीसरा है अनाश। सत्याग्रह का रूप अनशन है जिसका आजकल बड़ा गलत प्रयोग किया जाने लगा है। गांधी जी इसे आध्यात्मिक उग्र समझते थे और उनका विचार था कि इसे अपनाने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अनशन केवल कुछ विशेष अवसरों पर आत्मशुद्धि या आत्मवैचारिकों के हृदय परिवर्तन के लिए ही किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस शस्त्र का प्रयोग हर किसी व्यक्ति द्वारा नहीं वरन आध्यात्मिक बल संपन्न व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। और जो उनका जो पांचवा है या मतलब जो लास्ट उनका जो सत्याग्रह का मोड था वो था हड़ताल। सत्याग्रह का एक अन्य रूप हड़ताल है। किसी भी हड़ताल के संबंध में गांधी जी का विचार समाजवादियों और साम्यवादियों से भिन्न है। गांधी जी की वर्ण संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करते थे और उनके अनुसार हड़ताल आत्मशुद्धि के लिए किए जाने वाला एक सचेतिक प्रयत्न है, सर्वैच्छिक प्रयत्न है जिसका लक्ष्य स्वयं कष्ट सहन करते हुए विरोध का हृदय परिवर्तन करना। सत्याग्रह का मूल्यांकन करें तो गांधी जी के सत्याग्रह का यदि एक और कुछ व्यक्तियों के द्वारा बहुत अधिक गुणगान किया जाता है तो दूसरी ओर उनके आधारों पर उनकी बिंदु आलोचना की कूट आलोचना की जाती है। जैसे पहला है कि सत्याग्रह अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। आलोचक एक आदर्श के रूप में सत्याग्रह की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह का सिद्धांत अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। सत्याग्रह का तात्पर्य न केवल हिंसा का निषेधक वरन विरोधी के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना का भी अभाव है। दूसरा है कि सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं। आलोचकों का अनुसार प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक जगह प्रत्येक प्रकार के लोगों के साथ सत्याग्रह का सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र समाजों में जहां विवेक, मानवता के प्रति आदर और न्याय विद्यमान हो, सत्याग्रह का भले ही सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता हो परंतु निरंकुश शासकों और बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़े हुए लोगों के विरुद्ध सत्याग्रह की सफलता में निश्चित रूप से संदेह किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी यह आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग संभव नहीं है। गांधी जी के द्वारा विदेशी आक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का सुझाव दिया गया था
किंतु सामान्य अनुभव के आधार पर भी यही कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में सत्याग्रह सफल नहीं हो सकती। अहिंसक साधनों से भी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना अत्यधिक कठिन है। साम्यवादी, अराजकतावादी तथा अन्य क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति गांधीवादी विचारधारा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह जैसे अहिंसक साधनों से आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पूर्णतः बदलने के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। और सत्याग्रह के नाम में दुरुपयोग की आकांक्षा, ये जो सत्याग्रह के विरुद्ध एक आंदोलन यह है कि जा सकती है कि परिवर्तन समय में सत्याग्रह के नाम पर बहुत अधिक दुरुपयोग किए जा रहे हैं। तो निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि उपयुक्त विचार मंथन के आधार पर कहा जा सकता है कि सत्याग्रह का औचित्य, अनुचित या श्रेष्ठता, निर्भरता इस बात पर निर्भर करती है कि उनका प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। नैतिक दृष्टि से भी श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने पर यह निश्चित रूप से वीर पुरुषों द्वारा अनाथ के प्रतिरोध हुए उपयोग में लाया जाने वाला अहिंसक शस्त्र है, लेकिन व्यवहार में अनेक बार वांछित तत्वों द्वारा अपनी स्वार्थपूर्ति हेतु कार्रवाई की जाती है और इसे सत्याग्रह का नाम दे दिया जाता है और इसी कारण सत्याग्रह की आलोचना की जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो सत्याग्रह है वो किस किस मामलों में ये प्रयुक्त होता है और किस किस मामलों में ये नहीं प्रयोग में आ सकता है। तो सत्याग्रह follows the according to the above limitation is the true satyagraha and it is a symbol of spirit force of the satyagrahi. It is the mightiest and non-violent weapon to facing injustice and tempering. There is no fault in the principle of satyagraha. It depends on the circumstances and the person who use it. If the path of the satyagraha is followed on the basis of the above precaution, there is no reason of changing into the importunity.